Now look at question number 213. Page number 213, question number 1. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of battery of 3 cells of 2 volts each and a 5 ohm resistor and a 8 ohm resistor and 12 ohm resistor plug key all connected in series. So simply you have to draw a diagram, circuit diagram. So this is how a circuit diagram is being constructed. 3 resistors are connected in series, back to back they are placed with 6 volt battery. Key is inserted and moreover key is closed, that is why current is flowing through the circuit. So that's it, circuit this is done. Now see second question. Redraw the circuit of question 1, put एमीटर. बस क्या करना है आप सर्किट में, वही सेम सर्किट ड्रॉ करके एमीटर पुट करना है और वोल्ट मीटर पुट करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस. मतलब 5 ओम और आपका 8 ओम और 12 ओम 3 रेजिस्टेंस है, तीनों के अक्रॉस आपको वोल्ट मीटर पुट नहीं करना, सिर्फ 12 ओम वाले के अक्रॉस आपको वोल्ट मीटर पुट करना है. एंड व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर. क्योंकि अब आपका जो कनेक्शन है वो सारा सीरीज़ में है रेजिस्टेंसेस का, तो जो करंट है दैट विल रिमेन सेम इन ऑल दीज. तो क्या प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, तीनों रेजिस्टर्स आप ऐड करो सो एज टू गेट आर एस. आर एस विल बी इक्वल टू 12 + 8 + 5, 25 आ गया आपका. आर एस इक्वल टू 25 ओम्स. अब वोल्टेज कितनी गिवन है आपको, 6 वोल्ट्स. तो I इक्वल्स टू सिंपली आप यूज़ करो V/R, 6/25 इक्वल्स टू योर करंट. तो करंट आ गया आपका 6/25. एमीटर में कहीं पे भी आप एमीटर लगा लो, चाहे हर डिवाइस के हर रजिस्टर के अक्रॉस भी लगा लो, तो एमीटर में रीडिंग कितनी आएगी, 6/25 ही आएगी. बट वोल्टेज जो है वो क्योंकि डिवाइड हुई है, ये 6 वोल्ट ही डिवाइड हुई है, तो V1 V2 V3 के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा जैसा हमने पहले किया था. तो V3 की वैल्यू क्या होगी, V3 इक्वल्स टू I इंटू R3. I जो हमारा निकला अभी उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे अलॉन्ग विथ दिस R3. Now see the solution for the second question. Like what I have told you, R is to be calculated in series. All the 3 resistances are to be added so as to get the value of R series. That R series is to be divided with total potential V, that is given to be 6 volt, so as to get the total value of current. So current comes out to be 0.24 ampere. So the reading in ammeter will be 0.24 ampere. Now what we have to calculate, we have to calculate the reading of voltmeter, and where the voltmeter is being installed, it is fixed in the circuit around the resistance of 12 ohms. So we have to calculate the potential difference across third wala resistance. So I that is same in series for all the resistances, that is to be written as 0.24. R whose value is 12 ohms, so that comes out to be 2.88 volt. So the reading in voltmeter will be this and reading in ammeter will be this. Now look at main exercise questions at page number 221. So let us start with first question. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio older resistance to that of new resistance we have to calculate. So let us understand this question first. Suppose we have this kind of wire AB whose length is L and resistance given to us is R. When it is being cut into 5 equal pieces, obviously the length also get divides by 5. Each part is now smaller than the original length of the wire obviously, and the length of each part is now L/5 instead of L, क्योंकि 5 छोटे टुकड़े कर दिए, सबकी लेंथ इतनी हो जाएगी. Obviously R also becomes R/5. Why this is so? Because R is proportional to L. So if L reduces then R also reduces. तो R भी हर part का कितना हो जाएगा, R/5 length के divide होने से. Now what we have done, all these 5 small parts are connected in parallel with each other. So the combination of these parallel system of resistors is R dash as per the question, and we have to find what is the ratio of R and R dash. So I hope question is clear to you now. So we are not going to do this question by a long method. You can also do it by long method, but I am applying shortcut method because we have done this formula for parallel.
if resistances value is same, means if number of resistances are given to you and they are of same value, then we can directly use the formula instead of writing 1 by R1 plus 1 by R2 up to 1 by R5. No need to write all this process, no need to go to that process, this is longer one. Directly use the shortcut में. तो R पैरेलल क्या हो गया, R बाय N. R हर इंडिविजुअल वैल्यू का रेजिस्टेंस है और N नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितने हैं हमारे. तो हर इंडिविजुअल वैल्यू का जो रजिस्टर आपको गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है, R बाय 5 एज पर द कटिंग्स. जब हमने कटिंग्स करी तो R बाय 5 नंबर कितना है 5, तो ये आपका कितना आ गया R बाय 25. तो R पैरेलल और R की रेशो कितनी आ गई 1 बाय 25. R पैरेलल एक्चुअली क्या है आपका, मैं R पैरेलल लिख रही हूँ बट एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था R डैश. तो आप यहाँ पर R पैरेलल पहले ही यूज़ करते आओ बट बाद में आप यहाँ पर इसको R डैश शो कर सकते हो. अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में यही था कि रेशो निकालनी है हमें R और R डैश की, पुराने और नए रेजिस्टेंस की. तो हमने ये रेशो निकाल दी, हमने नए और पुराने की निकाली थी. तो लेट अस इन्वर्ट दैट, R बाय R डैश इक्वल्स टू 25. ये आ गया आपका आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी नहीं करना हमने, सीरीज पैरेलल थर्ड भी नहीं करना और फोर्थ भी नहीं करना अभी. Let us come to question number 5. How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference? Obviously voltmeter is connected in parallel and there is a reason behind कि why voltmeter is connected in parallel and ammeter is connected in series. That I'll cover in my upcoming videos. Next question number 6. A copper wire has diameter. Diameter is given to you in millimeter. Obviously it has to be converted into meters. Obviously diameter को हमें radius में भी convert करना है. और रेजिस्टिविटी इतनी गिवन है आपको 10⁻⁻8. मॉडरेट रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब कोई मेटल लिया हुआ है क्वेश्चन में. ऑब्वियसली मेटल क्या है आपका, कॉपर. तो मटेरियल से उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में पता चल रहा है हमें. और अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रही हूँ और मैं सीधा रेजिस्टिविटी को देख रही हूँ, सीधा न्यूमेरिक डाटा को देख रही हूँ मैं, तो मुझे मटेरियल का पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी लो है तो ऑब्वियसली मटेरियल क्या होगा, कॉपर होगा. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है. रेजिस्टेंस आपको गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट और गिवन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हो. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अब. डायमीटर गिवन है 0.5 mm, रेडियस हाफ हो गया. मिलीमीटर के कन्वर्जन के लिए हमने 10⁻³ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया. रो की वैल्यू गिवन है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, लेंथ निकालनी है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे रो L बाय A. रो गिवन है, L निकालना है, A गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली हमें निकालना पड़ेगा. इनडायरेक्टली निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr². कीप ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ फॉर πr एंड ऑल दैट. इसको स्टॉक ऑफ मत करो, 10⁻⁻ फैक्टर को इसी तरह रहने दो. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी -8 का फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में हमें ईज रखेगा. और यहाँ मैंने काट दिया इसको 25 और इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने 16 पुट कर दिया. आपने इसको नहीं काटना तो इसको भी छोड़ दो, ये मैथ्स है. एरिया मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं करा, मैंने एज इट इज़ उसको वहीं पर छोड़ दिया और मैं ऐसे यूज़ करूँगी इसको, क्योंकि एरिया से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, लेंथ से मतलब है. अगर एरिया निकालना होता तो मैं इसको सॉल्व करती. अब R इक्वल्स टू रो L बाय A मैंने यूज़ करा लेंथ निकालने के लिए. सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, वैल्यूज़ आपको समझ में आ जाएंगी कैसे पुट करी हैं. और L इक्वल्स टू 122.76 मीटर. ये एग्जैक्टली यही आएगा इसको सॉल्व करके, ये मैंने सारा सॉल्व करके ही लिखा है. अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है. हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड. अब उसके पैरामीटर्स को, उसके डायमेंशंस को अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस की नई वैल्यू क्या होती है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए ऑलरेडी. अब इसको दोबारा देखो एक बारी. अगर डायमीटर को हमने डबल कर दिया तो ऑब्वियसली रेडियस भी डबल होगा. जो रेडियस पहले आपका 0.25 मिलीमीटर था वो अब कितना हो गया, 0.5 मिलीमीटर या फिर 10 × 10⁻³ मीटर. एरिया के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर करा. अब एक तरीका ये है कि आप एरिया निकालो, सारी वैल्यूज़ पुट करो, R की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, फिर R इक्वल्स टू रो L बाय A में सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो. एक प्रोसीजर ये है कि रो पुट करो, L जो आपने निकाल ली नहीं ये वैल्यू पुट करो, क्योंकि ये आ गई आपके पास वैल्यू.
और ए की वैल्यू आप पुट करो। एक शॉर्टकट मेथड क्या होता है, एक लॉजिकल मेथड क्या है, यहाँ पर आर ट्वाइस कर दिया हमने, आर इक्वल्स टू नाउ आर इज नाउ डबल्ड, इट हैज़ बिकम ट्वाइस ऑफ ओल्डर रेडियस। तो ए डैश जो हमारा नया रेडियस है वो क्या है, पाई इंटू जो नया आपका आर हो गया 2r का स्क्वायर, आर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2r पुट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 4 टाइम पाई आर स्क्वायर। इसको हम ओल्ड एरिया लिख सकते हैं ए। तो ए डैश जो है मतलब जो नया एरिया है वो 4 टाइम्स है पुराना वाला एरिया। तो ऑब्वियसली नया रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने एरिया के साथ एरिया के साथ देखना है, लेंथ का कुछ नहीं किया उसने स्ट्रेच नहीं किया, ये नहीं बोला डबल्ड ऑन इट नहीं बोला, सिर्फ डबल करी है लेंथ को, आगे एक्सटेंड कर दी है लेंथ किसी और तरीके से ऐड करके, स्ट्रेचिंग नहीं करी। अगर स्ट्रेचिंग करी होती या डबलिंग खुद के ऊपर करी होती तब एल की वैल्यू डिफरेंट होती, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आर डैश इक्वल टू रो एल बाई ए डैश, ये ए डैश आ गया यहाँ पर, ए डैश की जगह मैंने ये 4a पुट कर दिया। और ऑब्वियसली यहाँ से अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि रो एल बाई ए, ये आपका क्या है, रो एल बाई ए हमारा पुराना रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम्स। तो ये शॉर्टकट हो गया, बस चीज़ें आपने मैनिपुलेट कर दी, इधर की उधर कर दी आपने, और डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन में घुसे हुए आपका ये सारा निकल जाएगा। आर डैश इक्वल टू रो एल बाई 4a, ये आ गया आपका। रो एल बाई ए को मैंने डायरेक्टली आर लिख दिया जिसकी वैल्यू क्या थी 10, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2.5 ओम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने ऑलरेडी ग्राफ में कवर कर रखा है, ये आपको वहाँ से देखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस देयर इज अ करंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सिंपली V इक्वल्स टू आई आर यूज़ करो और फिर उसके बाद मिली एम्पियर जो है उसको ऑब्वियसली तुम एम्पियर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। नाउ सी दिस 9th क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज आते ही ध्यान में रख लो कि करंट सेम रहेगा, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो, बस ये चीज़ ध्यान में रख लो। कितने रेजिस्टर्स हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। 5 रेजिस्टर्स हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, 9 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कर दी है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए है, सब में सेम करंट फ्लो करेगा और कितना फ्लो करेगा, जितना आपका टोटल करंट है। टोटल करंट सिंपली आप कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ लगाओ, I इक्वल्स टू V बाय आर। आर कौन सा यूज़ करेंगे हम, आर सीरीज़ वाला यूज़ करेंगे, आर सीरीज़। और आर सीरीज़ के लिए सब रेजिस्टर्स को आप ऐड कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर which are to be connected in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसे खुद दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको कितने रेजिस्टर्स चाहिए जिनको आप पैरेलल में लगा सको और कितनी वैल्यू हो उन रेजिस्टर्स की 176 ओम, ताकि वो रेजिस्टर्स इकट्ठे आप जब ज्वाइन करो तब वो किस लाइन पर ऑपरेट कर सकें, इस लाइन पर ऑपरेट कर सकें। अब इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा, इससे भी कुछ नहीं, इससे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को किसी रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में, और इन दोनों से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे कि इन रेजिस्टर्स को हम किस तरह से कनेक्ट करें ताकि इस लाइन के द्वारा प्रोवाइड किया गया रेजिस्टर हमें मिल जाए, रेजिस्टेंस हमें मिल जाए। तो ये इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एकदम से देखने में कुछ समझ में नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या है कि इतने रेजिस्टर्स आप कितने नंबर में यूज़ करोगे ताकि आप इस लाइन के ऊपर सफिशेंटली उन रेजिस्टर्स को ऑपरेट करा सको। तो सॉल्यूशन में क्या है, 176 ओम के रेजिस्टर्स हैं मेरे पास और मेरे को नंबर निकालना है कि हाउ मैनी रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट दे कैन ऑपरेट ऑन दिस लाइन। अब इससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस का कुछ कोरिलेशन आए। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने सिंपली ओम लॉ से वैल्यू निकाल ली 44 ओम। मतलब ये लाइन जो है, ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, 44 ओम। तो मैं ऐसे रेजिस्टर्स यूज़ करूँगी, और कितने यूज़ करूँ ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इस बड़ी वैल्यू से छोटी में रिड्यूस हो जाए। तो ऑब्वियसली देखो कि बड़ी वैल्यू को जब छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू में रिड्यूस करना है
तो मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, पैरेलल, और वही क्वेश्चन में मेंशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन आप यूज़ करो। क्योंकि अगर आप इनको सीरीज़ में लगा दोगे, 176 ओम के रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज़ में लगाते हो, 2 भी रेजिस्टर्स अगर आप सीरीज़ में लगा देते हो तो वैल्यू एक्सीड हो जाती है कम होने की बजाय। तो मैं इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाती हूँ। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट आई हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ईच ऑफ वैल्यू 176 ओम। अब क्योंकि ईच वैल्यू इज सेम, सो वी कैन सिंपली पुट this formula, R parallel equals to R by N. The value given to us for each individual resistor is 176 ohm and we have to calculate and how much equivalent resistance we want. कितना total हमें resistance चाहिए, that is 44 ohms. तो 44 is to be equated with 176 by N. N is to be calculated and that comes out to be 4. तो ऐसे 4 resistors अगर मैं parallel में लगाती हूँ तो आपका नेट रिज़ल्ट 44 आएगा। इवन आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। प्लस 176 ओम, तो ये आपका 44 ओम ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 and 4। ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने ब्लू बैच में एक बारी कर लिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। इसमें आपने क्या करना है, अब मैं दोबारा से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इन बिटवीन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है मेरे पास। तो मैंने 2 रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगा दिए, एक के साथ पैरेलल में। नेक्स्ट टाइम मैंने ऑपोजिट कर दिया, 2 मैंने पैरेलल में यूज़ कर लिए विद एक के साथ सीरीज़ में। तो जब ये दोनों सीरीज़ में थे तो 6 और 6 12 आ गया, 12 और 6 पैरेलल में मैंने कॉम्बिनेशन निकाल दिया ये। और जब ये दोनों पैरेलल में थे, 6 और 6 दोनों सेम वैल्यू के हैं, और ये मैंने बता रखा है कि जब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। तो 3 और 6 और 3 सीरीज़ में डायरेक्ट ऐड होकर क्या हो गए,